working in such organizations where safety is priority and we are living with the safety mindset, where safety is one and all at all levels, either at home, office or at field. There is no compromise on it. In this chain, farmers are one of the most important stakeholders who are dealing with so many agrochemicals products in day out. Hence, their safety becomes very important for us. And we at BSF are committed to safety and stewardship for the farming community. BSF has long been training farmers on aspects of safety while dealing with crop protection products. However, from 2016, we have started a dedicated program called Suraksha Hamesha. The meaning of Suraksha Hamesha means safety always, in which we are working at farmer level, where we are educating farmers about 9 steps of responsible use of crop protection products across country. And we reach out to different stakeholders like farmers, women farmers, spraymen, even children as well in school at village level, and also involving the local government, agriculture officials and channel partners to spread these messages. In 2013, BSF launched Surakshan Kit for the safety of the farmers as well as for the safety of the spraymen. Surakshan Kit is a affordable, high-quality set of standard personal protection equipment for the promotion of good agricultural practices as well as safety of the farmers. BSF has 2 sets of Surakshan Kit. There are 2 kinds which we sell normally in the market. One is Surakshan Kit, another is Surakshan Kit Complete. First one, that Surakshan Kit, it completes a pair of gloves, mask and goggle. Another one is Surakshan Kit Complete, which contains a pair of gloves, mask, goggle, apron and trouser. Surakshan Kit Complete is a complete set of personal protection equipments which is used for a sprayman while spraying, and that is promoted through our channel partners as well as our retailers. It is also the normal Surakshan Kit is used to fill the components of the complete Surakshan Kit wherever a farmer has a smaller requirement to complete the gaps if any. So these kind of Surakshan Kits we normally promote through our farmer meetings, field days, various kind of promotions, doing individual visits, YouTube promotion, WhatsApp campaigns, and through various means we are committed to sell the Surakshan Kit at no loss, no profit basis, and this is our personal motive as well as BSF's vision to promote safety in the field. फार्मर की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए हमने सुरक्षा हमेशा के 2 वीडियो बनाए, और ये जो हमने वीडियो बनाए उसको फार्मर आसानी से देख सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। पहला जो वीडियो है वो है एनिमेटेड है, उसके अंदर हमने सुरक्षा हमेशा के 9 स्टेप दिए हुए ताकि फार्मर वो 9 स्टेप आराम से देख सके और उसका उपयोग कर सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। दूसरा जो वीडियो है वो हीरोज कम बैक वाला है, उसके अंदर हमने हमारी जो संरक्षण किट है उसका कैसा उपयोग करना है और उपयोग करने के बाद फार्मर को कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है इसके बारे में दिया है। और ये दोनों वीडियो देख के फार्मर अपने आप को सुरक्षित रखे, यही हमारी अपेक्षा है। सुरक्षा हमेशा के अधिक जानकारी के लिए फार्मर हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं, ये दोनों वीडियो बार बार देख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ में हमने ये दोनों वीडियो यूट्यूब पे भी दिए हुए ताकि फार्मर उसको जाके देख सके और उसका उपयोग कर सकते। और हमने ये वीडियो फार्मर के ग्रुप में भी भेजे, पर्सनल अकाउंट पे भी भेजे ताकि फार्मर उसको बार बार देखे, उसका उपयोग करे और अपने आप को सुरक्षित रखे, यही हमारा उद्देश्य है। In 2020, due to COVID pandemic, there was no possibility of physical reaching out to large number of farmers. And Suraksha Hamesha is our core and fundamental farmer safety program. BSF team stands for leadership of farmer safety in India, and not reaching out to the farmers in COVID scenario was not a good option. It challenged us to look for alternative medium of reaching out effectively. Considering the reach of digital tools in rural India and the strong affinity of the farming community, conducting a digital outreach program was the most feasible and effective options. Hence, we used a digital platform to reach out. In 2020 alone, we able to reach out 26 lakh farmers through various digital platforms like Facebook, WhatsApp, YouTube channel, SMS, and digital meetings. We have conducted digital Suraksha Hamesha meeting in 5 languages like Hindi, Marathi, Gujarati, Telugu, Kannada, and covered 38,000 farmers as well.
So far we have reached out around 52 lakh farmers, and out of these 26 lakh farmers we covered only in 2020. And we will continue our efforts to ensure stewardship activities and ensure sustainable agriculture in future as well. Suraksha Hamesha fact sheet is a summary of all activities of Suraksha Hamesha that BSF conducts across India in a calendar year. Normally, we conduct different type of Suraksha Hamesha activities like farmer meetings, stewardship rallies, as well as exclusive digital farmer meetings, our promotional campaigns for stewardship, and these all activities along with the images, their pictures, and along with the complete numbers for a particular state, they are mentioned in these fact sheets. We reach out to the key stakeholders in the government with these fact sheets in Q1 of the year, and we also give them and update them about the progress of our stewardship activities. We also seek and request their participation in these stewardship activities, which encourages our team members. We as a BSF team decided to engage at State Agriculture University to cascade and penetrate our message of Suraksha Hamesha. Student of last graduating semester, they undergo the program of RAVE, means Rural Agriculture Work Experience, in which they have to spend at least 3 weeks in the village and interact with the villagers as well as farmers. So if we engage the RAVE student and teach as well as guide the students about our safety message and Suraksha Hamesha, in turn they will cascade our information among the villagers as well as the society. So in that context, we approach authority of different state agriculture universities of Gujarat and Maharashtra, and fortunately we got very good response from Anand as well as Junagadh Agriculture University. Last year, due to COVID, that offline classes were not operational, so we used digital tool to guide and educate RAVE students. In the entire process, we teach 500 plus RAVE students in entire activity in both the states. BSF कंपनीच्या माध्यमातून सुरक्षा हमेशा हे कार्यक्रम त्यांनी मागच्या 8-10 वर्षापासून राबवायला सुरुवात केली आहे. आता मी मागच्या 2-3 वर्षापासून त्यांच्या संपर्कात आहे. बऱ्याचशा ठिकाणी मी कार्यक्रम अटेंड केलेले. मागच्या वर्षी कोरोनाच्या काळातसुद्धा सुरक्षा हमेशा कार्यक्रम काय त्यांनी बंद ठेवलेले नाही. आम्ही म्हणलो हे अशा पद्धतीने आपल्याला घेता येत नाही, तर त्यांनी कोरोनाचं जे काय प्रिकॉशन घेतलं पाहिजे, मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग, ह्या सर्व परिस्थितीचा विचार करून काळजी घेऊन इथं जतमध्येसुद्धा सुरक्षा हमेशा असं एक प्रशिक्षण आपण आयोजित केला होता. आणि त्या प्रशिक्षणामध्ये सर्व जे काय आमचे 5-50 शेतकरी जमले होते, सगळ्यांना व्यवस्थित मार्गदर्शन केले. त्यांना किट म्हणजे नेमकं कसं असतं, किट वापरायच्या पद्धती सांगितले, फवारणीचं तंत्रज्ञान त्यांना समजावून सांगितले, म्हणजे सेफ्टी राहून आपण कशा पद्धतीनं फवारणी केलं पाहिजे. त्यामुळं आमच्या जत तालुक्यातले भरपूर लोकांना BSF कंपनीच्या माध्यमातून सुरक्षा हमेशा ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जागरूकता निर्माण झालेली आहे. इथून पुढं प्रिकॉशन नक्की शेतकरी घेतील आणि BSF कंपनीच्या ह्या कार्यक्रमाला माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा. आज BSF एक प्रोग्राम मना रही है जिसका नाम सुरक्षा हमेशा है. इसको इनका ऑब्जेक्टिव है कि ग्रोअर्स कम्युनिटी में ये अवेयरनेस हो जाए कि कैसे पेस्टिसाइड की सेफ हैंडलिंग हो. सबसे ज़्यादा जो 90% पेस्टिसाइड कंजम्पशन जो है वो सारी एप्पल में जाती है. और हम ये हमेशा देखते हैं कि लोग जो है वो जो जिस टाइम वो स्प्रेइंग करते हैं, जिस टाइम वो मिक्सिंग करते हैं पेस्टिसाइड्स की, इस टाइम वो बिल्कुल ना वो अपने घर में सेफली अपने पेस्टिसाइड्स को रखते हैं. जब मिक्सिंग करते हैं तो बिल्कुल वो नंगे हाथों से विदाउट यूजिंग द ग्लव्स, विदाउट यूजिंग द मास्क वो स्प्रे भी करते हैं, वो मिक्सिंग भी करते हैं. और उससे बहुत ज़्यादा जो उनकी अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं. तो ये हमारे ग्रोअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि पहले अगर हमारी हेल्थ ठीक हो, बाद में हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छा एप्पल, क्वालिटी एप्पल हो या ना हो. इसलिए हम भी अपनी तरफ से इस कास्ट
कश्मीर की तरफ से लोगों से यही कहेंगे कि जो ये प्रोग्राम आज मनाया जा रहा है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाएं कि हमें कैसे अच्छी तरह से इसको पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें। मैं अपनी जानिब से और अपनी यूनिवर्सिटी की जानिब से बासत को मुबारकबाद देता हूँ, कंग्रेचुलेट करता हूँ कि वो कम्युनिटी के लिए, हमारे ग्रोवर्स कम्युनिटी के लिए ऐसा एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिनमें उनको अपने लिए कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन सिर्फ एक एज मॉरल एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर वो ग्रोवर्स के लिए ऐसे प्रोग्राम डेडिकेट करते हैं जहाँ वो ग्रोवर्स की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, कम्युनिटी के हेल्थ का ख्याल रखते हैं। BASF कंपनीच्या सुरक्षा हमेशा या उपक्रमामध्ये औषधाची फवारणी करताना काय काळजी घ्यायची याबद्दलची माहिती कंपनीच्या मीटिंगमधून आम्हाला वेळोवेळी या ठिकाणी मिळालेली आहे। पण फवारणी करत असताना सेफ्टी किटचा वापर करणं गरजेचं आहे। त्या ठिकाणी आपण फवारणीसाठी जे द्रावण तयार केलेलं आहे ते कसं तयार करायचं, त्यानंतर काय काळजी घ्यायची, त्यानंतर धूम्रपान असेल, कोणत्याही खाद्यपदार्थाचं सेवन या ठिकाणी फवारणी करत असताना आपण करायचं नाही। आणि औषध फवारून झाल्यानंतर ज्या रिकामे बॉटल असेल, जर डब्बा असतील, त्याची विल्हेवाट आपण कशी लावायची, का एक खड्डा घेऊन ते बुजून टाकण्यात यावे। त्यानंतर जो सेफ्टी किट आहे तो आपला व्यवस्थित स्वच्छ धुवून सुकून आणि तो पुनर्वापरासाठी परत व्यवस्थित ठिकाणी ठेवून द्यायचा आहे। त्यानंतर या अशा महाभयंकर कोरोना काळात सुद्धा फेसबुक असेल, व्हॉट्सअप असेल, याच्या माध्यमातून सुरक्षा उपक्रमाबद्दल जी माहिती कंपनीने आम्हाला वेळोवेळी आमच्यापर्यंत पोहोचवली त्याबद्दल मी कंपनीचं धन्यवाद मानतो, आभार मानतो। अभी BASF के द्वारा एक मीटिंग संचालित की गई थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और ये BASF के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जिसमें जो कृषि के छात्र हैं तथा अन्य छात्र भी घर बैठकर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। इसमें हमें मीटिंग में यह बताया गया कि एक किसान को कहाँ से कीटनाशक को खरीदना चाहिए और कीटनाशक का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए तथा कीटनाशक का प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का किसान को नुकसान ना हो। तो इस पूरी मीटिंग का अगर मैं सारांश इस वीडियो के माध्यम से बताऊं तो हमें एक किसान जो होता है उसे एक अधिकृत जो रिटेलर हो जाते हैं, ऑथोराइज्ड रिटेलर होते हैं, उनसे ही कीटनाशक लेनी चाहिए और उसका हमें एक पक्का बिल भी लेना चाहिए तथा और हमें जब घर लेके आते हैं हम ऐसी कीटनाशक वगैरह कुछ भी तो हमें एक ऐसे ही अलमारी रखना चाहिए जिसमें हम लॉक लगा सकें जिससे यह सजीवों के संपर्क में ना आ पाए। और हमें कीटनाशक का छिड़काव जो हमेशा PPE किट पहनकर करना चाहिए जिससे जो कीटनाशक है हमारी त्वचा, आँख, कान, मुँह इत्यादि से संपर्क में ना आ पाए। और हमेशा स्प्रे हमें या तो प्रातःकाल में करना चाहिए या फिर हमें इवनिंग में करना चाहिए क्योंकि इस टाइम इन दोनों टाइमों में टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता है और हवा भी इतनी तेज़ नहीं चलती है जिससे हमारा जो दवा का छिड़काव होता है वो अच्छे से हो जाता है। और यही जानकारी हमें महत्वपूर्ण तरीके से बताई गई। इसके मीटिंग के लास्ट में हमसे काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी किए गए। इसी प्रकार की जानकारियों को मैं काफ़ी किसानों तक पहुंचा भी चुका हूं और आगे भी मैं इस तरह की जानकारी जो हमें BASF के द्वारा प्राप्त हुई है मैं अन्य किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा। थैंक यू सर। BASF. We create chemistry.